Hello everyone, welcome back to my channel Risk Modeling Hub। जब हम किसी क्रेडिट रिस्क स्कोर कार्ड बनाने की बात करते हैं, लोग सीधा मॉडलिंग और एल्गोरिथम्स पर फोकस करते हैं, लेकिन बैंक्स एक्चुअली मॉडलिंग से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करते हैं, जो है बिजनेस प्रॉब्लम फ्रेमिंग। बैंक किसी मॉडल को बनाने से पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता है, रिस्क को डिफाइन कैसे किया जाए, मतलब कौन सा कस्टमर रिस्की है और कौन सा सेफ। अगर रिस्क को गलत डिफाइन कर दिया तो चाहे मॉडल कितना भी एडवांस्ड हो, उसका आउटपुट यूजलेस हो सकता है। इसलिए क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग का सबसे पहला स्टेप स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग नहीं होता, बल्कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बैंक्स क्रेडिट रिस्क स्कोर कार्ड बनाने से पहले बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करते हैं और उस रिस्क को डिफाइन कैसे करते हैं। So before building any credit risk model, banks must answer one fundamental question: what exactly is the business problem we are trying to solve? So let's understand this in detail. So a credit risk scorecard is not just a statistical model; it is a business decision tool used to balance two critical objectives. So first is increase loan approvals and grow business, and next is control credit risk and minimize losses. So these two are most important critical objectives that we need to follow. So if banks approve too many risky customers, उससे क्या होगा? They suffer defaults and financial loss. But if banks approve too few customers, कम को अगर वो अप्रूव करेगा, they will lose revenue and market share. तब करें तो करें क्या? So core challenge becomes, how do we identify the risky customers before giving them a loan? And this is where credit risk scorecards come into the picture. But before building a scorecard, banks must carefully frame the business problem. They must define the risk and determine how default will be measured. So here we will understand how banks actually do this in practice. Let's see. So what is business problem framing? Business problem framing means translating a business question into a data science problem. In credit risk, the business question is usually which customers are likely to default on their loan. This is the usual question. But from the modeling perspective, this must be converted into a prediction problem with a clear target variable. Because in modeling, the target variable should be clearly defined. So the problem becomes, predict the probability that a borrower will default within a defined time period. That's the problem. Once we have defined the target variable, that's how it will get converted. So this probability, whatever we have defined in the previous slide, is known as the probability of default, and this is the core objective of the credit risk scorecards. So the modeling problem becomes, estimate the PD of each applicant using the historical data. But to do this, banks must first answer several business questions. So what are those key questions banks ask before building a scorecard? Because before any model development starts, banks define the problem by answering these questions. So the question can be, what exactly is the product? किस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो? Because जो रिस्क होता है, it differs across the products. Each and every product has its own risk characteristics. So let's say credit card. अब credit card का risk characteristic क्या होगा कि वो revolving credit रहता है, उसका outstanding balance और उसकी usage limited कभी भी defined नहीं रहती है, and that's why it has the very high behavioral risk. Next is the personal loan. Its risk characteristic can be unsecured loan and it has high default risk. पर्सनल लोन है, पीएल है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, छोटे स्टूडेंट से लेकर जो है बड़े प्रोफेशनल्स तक
तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई साथ में गारंटर कुछ नहीं रहता, एंड हाई डिफॉल्ट रिस्क तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा इसमें. होम लोन, इट्स रिस्क कैरेक्टरिस्टिक ये सिक्योर्ड लोन है बिकॉज यू आर टेकिंग लोन अगेंस्ट योर होम and it has comparatively lower default risk. Next is the auto loan. It has comparatively medium risk. So आपने देखा कि अभी हमने 4 एग्जांपल्स देखे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो स्कोर कार्ड भी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनना चाहिए. सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक ही स्कोर कार्ड वर्क नहीं करता, आपको वो आउटपुट जो है वो सही से नहीं देगा, मिसलीडिंग हो जाएगा. सो the scorecard must be product specific. For example, a credit card scorecard cannot be used for home loans. Credit card एक revolving है, वो unsecured है, and home loan जो हमारा secured है. दोनों के characteristics अलग हैं. So then who are we scoring? Banks must define the target. Banks must define the target population. कि हम किस पे काम करना चाह रहे हैं. टारगेट पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द कस्टमर इज न्यू टू बैंक कस्टमर, इट इज एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, ईटीबी कस्टमर, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर और सैलरीड कस्टमर. वो कस्टमर कुछ भी हो सकता है. तो हमें किस कौन से सैंपल डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो क्लियरली हमें डिफाइन होना चाहिए, विच इज नोन एज टारगेट पॉपुलेशन. Different segments require different scorecards. Many banks maintain separate models for NTB. ये बहुत important terminologies हैं, NTB and ETB. NTB scorecard meaning the customers who are new to bank, and ETB scorecard meaning which are existing to bank, which are already the customers of the bank. मे भी किसी और प्रोडक्ट के लिए हो, लेट्स से PL के हो और वाके बस HL के लिए आए हो. तो NTB और ETB NBFCs बैंक सब जगह बहुत frequent यूज होता है. Because ETB customers already have transaction history with the bank, hence a separate model makes sense because you already know the characteristics of those customers, how exactly is the payment behavior and उनके जो भी डिटेल्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी हैं. सो इसीलिए उनका बिहेवियर NTB कस्टमर्स के कंपैरिजन में उनका बिहेवियर अलग होगा एंड आपको उनके बारे में पता भी है. सो अ सेपरेट मॉडल मेक्स सेंस. What decision will the model support? Scorecards are built for specific decision. Decision can be anything. आइए हम देखते हैं. First decision can be approve or reject loan. हमें जो है सिर्फ कस्टमर जो न्यू कस्टमर चाहे ETB हो चाहे NTB हो, हमें सिर्फ ये असेस करना है कि हमें इस कस्टमर को लोन देना है कि नहीं देना है. So for that we build application scorecard, which helps us in taking the decision of approve or reject loan. Next decision can be managing the existing customers. जो हम ETB customers के बारे में बात कर रहे थे, उनका कैसे बिहेवियर चल रहा है, पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, क्या वो उनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो रिस्की बन सकते हैं, तो हमें उनके लिए बिहेवियरल स्कोर कार्ड बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट डिसीजन कैन बी प्रिडिक्ट अर्ली डेलिक्वेंसी. क्या ये कस्टमर्स अपने EMIs पे डिफॉल्ट कर सकते हैं, हम वो पहले से ही डिटरमिन कर सकें. उसके लिए हम अर्ली वार्निंग मॉडल बनाते हैं और इसको हम EWS मॉडल भी कह सकते हैं कि EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल मॉडल हम बना रहे हैं. डिसीजन कैन बी एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क फॉर द कैपिटल. Estimate risk for capital. Basis risk, how much risk are you predicting in the near upcoming future? Banks keep aside capital for them, and that decision can be determined based on the PD model that comes under the Basel. Basel is primarily known for determining the capital for the banks. So first the bank decides which decision will the model support. हम किस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए हम मॉडल बना रहे हैं, किस पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन पे हम काम करना चाह रहे हैं, वो सब चीजें जो हमारी डिफाइन होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सीधा ML मॉडल लगाया और काम खत्म. नहीं, हमें अपने टारगेट पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए. हमें उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से क्या आउटकम हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं, क्या डिसीजन हम बनाना चाह रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए. एंड दीज आर सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स. एंड वन मोर थिंग, NTB और ETB ये टर्मिनोलॉजीज प्लीज आप अपने माइंड में रखें. जो न्यू है, जो रिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं,
उन्हें ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, और ये हमेशा ध्यान रखें कि जैसा पॉपुलेशन सेगमेंट है सबके लिए अलग मॉडल्स बनाएं, किसी के सबके लिए एक ही मॉडल के हिसाब से वर्क ना करें। आइए आगे देखते हैं। So let's define risk in banking. One of the most critical steps in problem framing is defining what exactly the risk means. क्या होता क्या है risk actually? So in banking, risk usually means probability that the borrower will default on their loan. हो सकता है कि borrower जो है हमसे कस्टमर हमसे लोन लेने तो आया, पर क्या चांसेस हैं कि वो जो है आगे जाके डिफॉल्ट कर गया मीन्स टाइमली वो जो है पे नहीं कर पाया। But default itself must be clearly identified and defined. So banks define default using the delinquency thresholds. क्या मतलब हुआ इसका? Thresholds वो define करते हैं, be it at month level, I mean at days level, जो हम DPD के बारे में हम आगे बात करेंगे, और उसके हिसाब से ही हम उनका जो है delinquency के बारे में, delinquency means default के ट्रेंड्स के बारे में हम देखते हैं। So for example, let's say borrower का status है 30 DPD। आपने ये देखा होगा 30 DPD, 60 DPD, 90 DPD। इसका मतलब ये होता है कि 30 DPD माने 30 days past due, मतलब 30 days हो गए हैं अभी तक जो है borrower ने टाइमली पे नहीं किया है। 60 DPD meaning 60 days past due, 60 दिन 60 days निकल चुके हैं। 90 days मतलब 90 days निकल चुके हैं। 90 डेज पास ड्यू, जिसको हम 90 प्लस DPD भी कहते हैं, और यहाँ पर मोस्टली बैंक्स अगर बाजल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर वो डिफॉल्ट ही मानते हैं उस कस्टमर को। दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट विद बाजल रेगुलेटरी गाइडलाइंस। सो इफ अ बोरोअर मिसेस पेमेंट्स फॉर 90 डेज और मोर, दे आर कंसीडर्ड डिफॉल्टेड एज पर द बाजल रेगुलेटरी गाइडलाइंस। अदरवाइज हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम वो डेफिनेशन और कितने टाइम के लिए हमने देखना है वो सब हम कैसे डिटरमिन भी कर सकते हैं। टारगेट वेरिएबल डेफिनेशन। आफ्टर डिफाइनिंग डिफॉल्ट, द बैंक्स मस्ट डिफाइन द टारगेट वेरिएबल फॉर मॉडलिंग। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिकम्स अ सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। आपको पता है मशीन लर्निंग में जो है टारगेट वेरिएबल जो है डिफाइंड होता है। अगर वो डिफाइंड है तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरी में आता है, एंड हमें टारगेट वेरिएबल अपने मॉडलिंग के लिए डिफाइन करना ही है। So let's say target is equal to 1. So this means customer has defaulted, and target is equal to 0 means customer ने default नहीं किया है। Customer did not default. Customer did not default. But the banks must also define the observation window. Observation window मतलब हम कितने टाइम के लिए उस कस्टमर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेट्स से 6 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए, और उसके बाद हम उसका टारगेट वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि कस्टमर ने डिफॉल्ट करा कि नहीं करा। दैट इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन विंडो। द पीरियड यूज्ड टू कलेक्ट कस्टमर फीचर्स। कस्टमर्स का फीचर्स कलेक्ट करना है, कितने टाइम तक हम उस कस्टमर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इज नोन एज द ऑब्जर्वेशन विंडो। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर डेटा एट लोन ओरिजिनेशन। Performance window, the period used to observe default behavior. For example, 12 months after the loan approval. कस्टमर डेटा हमने कितने टाइम के लिए लिया और कब तक के हम उसका डिफॉल्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन विंडो एंड परफॉर्मेंस विंडो। सो फॉर एग्जाम्पल, लोन इशूड इन जनवरी 2022। सो ऑब्जर्वेशन डेटा हमारा क्या होगा, इनकम, एज, ब्यूरो स्कोर, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हम उस कस्टमर को कब तक हमने देखना है, उसका बिहेवियर हम कब तक देख रहे हैं, दैट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस विंडो। जनवरी 22 से लेट से हम दिसंबर 22, 1 ईयर का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो इफ द कस्टमर बिकम्स 90 प्लस DPD ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं, Jan 22 टू दिसंबर 22, इसके बीच में अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है मतलब 90 प्लस DPD अगर हो जाता है, हम उसको कहेंगे टारगेट, हम उस कस्टमर के लिए डिफाइन करेंगे टारगेट इज इक्वल टू 1, एल्स टारगेट इज इक्वल टू 0। अगर 90 प्लस DPD नहीं हुआ तो उस कस्टमर के अगेंस्ट टारगेट इज इक्वल टू 0 डिफाइन हो जाएगा। बैड डेफिनेशन इन स्कोर कार्ड्स। Banks also define something called as bad definition. This defines which customers are considered risky in the model. जो हमने पीछे देखा अभी कि लेट्स से बाजल कहता है
कि 90 प्लस डीपीडी इन 12 मंथ्स को हम जो है बैड डेफिनेशन, बैड कस्टमर्स बोलेंगे। पर कभी कभी कुछ मॉडल्स में हम लोग 60 प्लस डीपीडी या 30 प्लस डीपीडी भी हम डिफाइन करते हैं अर्ली डेलिंक्वेंसी मेजर करने के लिए। अब ये डेफिनेशंस कैसे डिफाइन हो रही है वो हम आगे देखेंगे। राइट ऑफ मतलब सीवियर डिफॉल्ट, मतलब अब हम उन कस्टमर्स को नहीं कंसीडर कर रहे। लेट से 180 प्लस डीपीडी लेट से हो गया या 240 प्लस डीपीडी लेट से हो गया है कि अब हमें उनके तरफ से चांसेस बहुत कम, लेट से बिल्कुल 1% करीब ही बचा है कि कुछ आएगा उनकी तरफ से कुछ रीपेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो उनको हम राइट ऑफ बोल देते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज ऑफ, कि अब हमें पता चल गया है कि लॉस रियलाइज, पता चल गया कि हाँ अब हमारा कितना लॉस ऑलरेडी अब हो चुका है, तो दैट इज नोन एज चार्ज ऑफ। So for example, bad is equal to 1 if customer becomes 90 plus DPD within 12 months. This becomes the target variable in the scorecard model. सैंपल सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, हम किस पॉपुलेशन पे, किस सैंपल पे हम काम करने वाले हैं वो भी सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए बिफोर बिल्डिंग अ मॉडल। बैंक्स मस्ट डिसाइड विच हिस्टोरिकल लोन्स विल बी यूज्ड टू बिल्ड द मॉडल। टिपिकल डेटा सेट इंक्लूड्स लोन एप्लीकेशन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। हम हिस्टोरिकल डेटा करीब यूजुअली हम 5 साल का उठाते हैं, बट अगर 2 to 3 years का भी डेटा अगर हमें क्लाइंट साइड से मिलता है तो वो हम उसको सफिशिएंट मानते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहे हैं उस टाइम पीरियड में। बट दे रिमूव वेरी रिसेंट लोन्स एंड लोन्स विद इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस हिस्ट्री। जो कस्टमर्स रिसेंटली ऐड हुए हैं और हमने जो टाइम फ्रेम परफॉर्मेंस विंडो जितना हमने डिफाइन किया, अगर वो कस्टमर का कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उन कस्टमर्स को रिसेंट रहे या उनका इनकम्प्लीट परफॉर्मेंस रहे तो हम उनको हटा देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ परफॉर्मेंस विंडो इज 12 months, loans issued after 12 months cannot be used। जो 12 महीने के बाद इशू हुए होंगे हम उनको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनका आउटकम हमें अभी तक पता नहीं है, उन्होंने उतना टाइम पीरियड अभी तक नहीं स्पेंड किया है बैंक के साथ, लेंडर के साथ। बेसिकली हमें उनका परफॉर्मेंस नहीं पता है, इसलिए हम उनको अपने ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड राइट सेंसरिंग। So banks only select loans where performance data is available। अगर हमें उस डेटा के में फुल परफॉर्मेंस विंडो नहीं मिलेगा, हम उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस नहीं लगा पाएंगे और आगे का हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मॉडल बिल्डिंग से पहले हमें डेटा सेट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि और उसकी सिलेक्शन स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइनिंग गुड वर्सेस बैड कस्टमर्स। So once default definition is finalized, customers are characterized as either good or bad. So good meaning no default during the performance window। जो हमने पीछे समझा कि कुछ भी डिफॉल्ट नहीं हुआ during the performance window। Let's say 1 year हम एग्जांपल लेके चलते हैं। And bad meaning default during the performance window। Let's say 90 plus उसका 12 months में हो गया है। Indeterminate, हमारे पास इनफ डेटा ही नहीं है, उनका परफॉर्मेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि वो गुड बनेगा कि बैड बनेगा। So sometimes banks also remove indeterminate customers such as early closures, fraud and incomplete accounts। This step ensures clean training data। डेटा सेट का कंप्लीटनेस होना बहुत जरूरी है, तो जो अकाउंट्स ऑलरेडी फ्रॉड या इनकम्प्लीट हो चुके हैं या जिनका क्लोजर जल्दी हो चुका है वो हमारे डेटा सेट को बायस बना देंगे या काफी ज्यादा नॉइज भी ला सकते हैं, इसलिए उस डेटा को हटा देना ही सही है। तो what I am trying to say is कि डेटा को अंडरस्टैंड एंड डेटा सिलेक्शन पे 60 to 65% आई वुड से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा सही तो आगे मॉडल की सिलेक्शन का काम और वो सब तो फिर काफी कम परसेंटेज बचता है। बिजनेस कंस्ट्रेंट्स। Business problem framing also includes business constraints such as regulatory constraints। इसमें क्या हो सकता है? Let's say under Basel regulations, banks must ensure that models should be transparent, it should be properly validated and should explain the results clearly and well। So this is why logistic regression scorecards are still widely used। Next can be the operational constraints। So the model must use data available at the decision time and the allowed variables can be, let's say, income, age, bureau score, employment, etc.
नॉट अलाउड कैन बी द फ्यूचर पेमेंट बिहेवियर, आगे का जब हमें नहीं पता तो हम कैसे ले सकते हैं. Next comes the interpretability. Banks prefer models that can be explained to the regulators, auditors and risk committee. So these 3 points should be ensured, like regulatory constraints, operational constraints, interpretability. और भी काफी सारे points हो सकते हैं. Translating the business problem to modeling objective. So after all the definitions are finalized, the business problem becomes they predict the probability that a borrower will default with 12 months of the loan origination. So हमने क्या करा, क्या हमारा बना, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी हमने डिटरमाइन करनी है कि बोरोअर क्या हमारा बना, कि बोरोअर कब डिफॉल्ट करेगा, कितने टाइम पीरियड में, हमारा परफॉर्मेंस विंडो 12 मंथ्स में, कहाँ से, लोन के ओरिजिनेशन से. इस तरीके से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिवाइड कर लेना चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग. Mathematically, PD is equal to probability that a customer defaulted given its characteristics. What exactly the characteristics of the customer at that point of time, and where the characteristics include the age, income, bureau score, credit history, employment stability, etc. ये कुछ भी हो सकता है. So this probability becomes the credit risk score, and higher the probability meaning higher risk borrower, मतलब बोरोवर के रिस्की होने के चांसेस ज्यादा हैं. एंड लोअर प्रोबेबिलिटी मीनिंग सेफर बोरोवर, कस्टमर अच्छा है, टाइमली पे करता है. सो हाउ द स्कोर कार्ड सपोर्ट द बिजनेस डिसीजन. वंस द मॉडल इज बिल्ड, बैंक्स कन्वर्ट द प्रोबेबिलिटी इनटू अ क्रेडिट स्कोर. मॉडल से हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, हम उसको क्रेडिट स्कोर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि रेगुलेटर फ्रेंडली रहता है एंड इंटरप्रेटेबिलिटी बिजनेस सेंस में अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहता है. 750 प्लस लेट से कट ऑफ डिसाइड किया बिजनेस ने कि हम तब अप्रूव करेंगे. 700 to 750 में अप्रूव करेंगे, बट कुछ लिमिट हम लोअर लगा के करेंगे. 650 to 700 में हम मैनुअल रिव्यू करेंगे एंड बिलो 650 हम कस्टमर को रिजेक्ट ही कर देंगे, मतलब हम उसको लोन नहीं दे रहे हैं. So this helps banks automate the decisions, reduce risk and increase the efficiency. So for example, suppose a bank launches a personal loan product. Business goal is to increase the loan portfolio while keeping the default rate below 5%. So what are the steps that can be involved in this? First, we need to define the default definition, 90 plus DPD within 12 months, let's say. Then we will collect the data, past 3 years of loan data, and then we will define the target definition. Bad is equal to 1 if 90 plus DPD and 0 otherwise. Then we will train the model to predict the probability of default and convert this probability into the credit score. We will then use the score to decide the loan approval. So this scoring to decide the loan approval or not, this is done by the business team. So what are the common mistakes that can happen during the business problem framing? Many beginners make mistakes like wrong target definition, short performance window, and including recent loans without the outcome. One can also do the mistake like using variables not available at the decision time. जिस टाइम पे आप जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप बना रहे हो, उसमें वो वेरिएबल अगर है ही नहीं, आप उसको लेट से फ्यूचर पेमेंट बिहेवियर है, हमें नहीं पता आगे उसका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, तो आप उसको एज अ डमी सेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते. This leads to poor models in production. So building a credit risk scorecard is not easy, as it is not just about modeling. The most critical step is correctly framing the business problem. So banks must carefully define what is the default, what is the target variable, what is the performance window, and which customers are included in the sample. ये clearly define होना चाहिए before building a model. Only after these steps can the modeling process begin. Understanding this business context is what differentiates a good data scientist
फ्रॉम अ ट्रू रिस्क मॉडलर। डेटा साइंटिस्ट मॉडल बना रहा है, ठीक है, बट रिस्क मॉडलर का काम होना चाहिए कि वो रिस्क को सही तरीके से वो डिफाइन करे। इसी के साथ हमारा वीडियो जो है खत्म होता है। आई होप आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। और तो आज हमने क्या सीखा, क्या देखा हमने? आज हमने समझा कि क्रेडिट स्कोर कार्ड बनाने से पहले बैंक्स कैसे बिजनेस प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, जैसे डिफॉल्ट डेफिनेशन, परफॉर्मेंस विंडो और टारगेट वेरिएबल। अगर आप क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग या बैंकिंग एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल रिस्क मॉडलिंग हब को सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, डेटा सोर्सेज इन क्रेडिट रिस्क। बैंक्स कस्टमर डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं और मॉडलिंग के लिए कौन सा डेटा यूज होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी आपके साथ नॉलेज शेयर करने में। और आपको कुछ भी लगे, कोई भी डाउट आपको लगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।